I hope you're doing well. I'm Dhruva Pai Angle and I'm the co-founder of Fodu Club. I just got done with my fourth year at BITS Pilani Goa campus. After 4 years of answering BITSAT, now that BITSAT 2025 is happening, I've been getting a lot of DMs and a lot of messages in the Fodu Club community stating their experiences and the things that the students are scoring and their performance in the BITSAT exam. This really reminded me of my time back in 2021 when I was preparing for all of these entrance exams. I answered those exams, I got into BITS, and after spending my entire college life in BITS Goa, now I'm moving on to the next phase. So it has been a long journey, and it reminded me of the very start point of my life as a Bitsian. So today I thought I should make a video about sharing about what went by when I was also an aspirant like you. So back in 2021, when I was in my 12th standard, COVID was still quite prevalent in India, and because of that, there were lockdowns and there were a lot of things got delayed. So because of which exams like JEE, BITSAT, all of them got postponed. Now, I was not really keen on going into a government college, but BITS Pilani is something that I was really looking forward to. I was trying to complete as much syllabus as possible. उस समय पे पेपर 390 मार्क्स का नहीं होता था, it was of 450 marks. So out of 130 वैसे questions नहीं होते थे, there were 150 questions in 3 hours. So it used to be even more difficult as compared to what it is right now. So January, March वगैरह में when I answered my JEE main के attempts, I was not satisfied with my performance, because of which I decided to target the other colleges like VIT, Manipal, and I also wanted to target बिट्स ऑब्वियसली. सो इन तीनों कॉलेजेस को मैंने अपनी प्रायोरिटी बना ली थी, एंड बिट्सैट बिकॉज एग्ज़ाम एकदम लास्ट में होता है आफ्टर जे एडवांस्ड, आई डिसाइडेड टू मेक इट अ प्रायोरिटी कि मैं मणिपाल और वीआईटी में कुछ भी करके आई सिक्योर some branch, some decent branch with a decent rank. ऐसे करते करते I started answering mock test. थोड़े mock test दिए मैंने, and I was satisfied with my performance कि if I perform the same way in my final paper, देन आई विल ईजिली गेट इन टू बिट्स. ठीक है, मेरा कोई ऐसे स्पेसिफिक ब्रांच गोल नहीं था. आई वॉज नॉट हैविंग एनी गोल कि मुझे कंप्यूटर साइंस में ही पढ़ना है या फिर मुझे आज के डेट में देयर इज़ MNC, तो MNC में ही पढ़ना है. बट मेरे लिए इट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट कि आई जस्ट गेट इन टू अ Tier 1 कॉलेज. एंड द डिफरेंट थिंग इज दैट मेरे टाइम पे देयर वॉज ओनली वन बिट्स एट अटेम्प्ट. सो नाउ यू since 2022 get 2 attempts for BITSAT, but in 2021 during my year there was only one BITSAT attempt. So it was like do or die. Either you go there, you rock the paper and you are able to get into BITS, or you do not do good enough and you just have to consider other options. So I'll tell you the story of my BITSAT day. So it was in August, एंड उसके बाद माई सेंटर वॉज बिट्स गोवा इटसेल्फ, बिकॉज दैट वॉज द ओनली सेंटर इन गोवा बैक. उसकी वजह से नर्वसनेस और भी बढ़ गई थी, बिकॉज इट वॉज लाइक जिस कॉलेज में, जिस एरिया में मैं अपना पेपर देने जा रहा हूँ, इफ़ आई डो नॉट क्लियर दैट पेपर, मैं वापस इस एरिया में एज अ स्टूडेंट नहीं जा पाऊँगा. तो मुझे याद है कि बिकॉज द एग्ज़ाम सेंटर वॉज अराउंड 30 kilometers फ्रॉम माई होम, सो माई डैड डिसाइडेड टू ड्रॉप मी. एंड गाड़ी में जब हम लोग जा रहे थे, इट वॉज रेनिंग वेरी हैविली. ठीक है, द स्काई वॉज पूरा ग्रे एंड थंडर स्टॉर्म्स भी हो रहे थे. एंड मैं गाड़ी में बैठ के ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस रिवाइज कर रहा था. वी वेंट इनसाइड, आई सॉ द बी डोम विच इज़ द मेन बिल्डिंग ऑफ बिट्स गोवा, एंड मुझे वो हिट करने लगा कि नाउ इज़ दैट इंटेंस टाइम व्हेन that I have been preparing for since the last 2 years. If I do not give my best now in the coming 3 hours, then whatever I've done in the last 2 years is not going to benefit me. ऐसे like उस समय पे as a student I used to always quantify things. For me it was only about marks, branch, कि कौन से कॉलेज में मिल रहा है, वो सब. मैं longer term view of life को नहीं समझ पाता था, because obviously I was not mature enough. I went inside the exam hall. मेरे सामने 6-7 लोग खड़े थे. There were some guards वहाँ पे who were checking the admit card and checking the the ID card that you have to present. So environment was थोड़ा intense. I said goodbye to my dad, and he said that he will wait for me until the exam is done. तो आई वेंट इनसाइड द हॉल. आई वॉज ऑन टाइम, कुछ डिले नहीं हुआ था. बट बाहर जो एनवायरनमेंट था, बिकॉज वॉज रेनिंग सो हैवीली, उसके चक्कर में देयर वर सम इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स. तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स की वजह से द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है बिटसेट, इट्स नॉट ऑन द OMR शीट. तो उस चक्कर में आई वॉज वरीड कि अगर ड्यूरिंग द पेपर कुछ प्रॉब्लम हो जाए या फिर
कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर बिकॉज ऑफ सम वाटर लीकेज कहीं ना कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उस चक्कर में अगर मेरा पेपर अटक जाए तो इट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर मी। उस समय पे मुझे अगर कोई बोल देता कि थोड़े टाइम बाद, थोड़े महीनों बाद आई विल बी कमिंग बैक देयर एज अ स्टूडेंट, देन आई वुड नॉट बी एंशियस एट ऑल। बट इन दैट वेरी मोमेंट I tried to remember the things that I have learned, the name reactions that I mentioned. I was revising the some of the other things that I revised in the previous day. I was trying to recollect them, but मुझे याद ही नहीं आ रहा था. And I got so nervous कि 10 मिनट बचे हैं पेपर स्टार्ट होने में एंड मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है. एंड उस समय पे वही है, आसपास कोई था नहीं, एज आई मैंशनड आई वॉज फीलिंग वेरी अलोन. तो दैट फीलिंग हिट मी अ लॉट एंड आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ इन. तो प्रीटी मच एग्जाम स्टार्ट हुई एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग द स्ट्रैटेजीज दैट आई यूज्ड टू अप्लाई इन माई मॉक टेस्ट. मैं पहले पूरे पेपर को स्किम करके आई यूज्ड टू अटेम्प्ट ऑल द ईजी क्वेश्चंस विच आई कैन आंसर इन लाइक 20-30 seconds और 40 seconds. आई वुड मार्क फॉर रिव्यू दोज क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि आई कैन सॉल्व इन अ मिनट और 1.5 minutes. एंड इस चक्कर में क्या हो गया कि आई स्टार्टेड विद द इंग्लिश एंड एलआर सेक्शन बिकॉज आई थॉट कि उससे सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होगा. बट इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आ गए थे जो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहे थे कि व्हाट आई शुड टिक. सो इंग्लिश यूज टू बी माई स्ट्रेंथ इन द मॉक टेस्ट एज वेल एज द स्कूल में जो भी हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं. बट यहाँ पे मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आ रही थी एंड बिकॉज ऑफ दैट आई स्टार्टेड गेटिंग नर्वस. सो एज यू नो बिटसाइड का कभी अनबैलेंस आ सकता है. सो मेरे पेपर में बहुत सारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स आ गए थे एंड उस समय पे आई गॉट वेरी नर्वस. देन आई मूव्ड ऑन टू थोड़े अटेम्प्ट करके आई मूव्ड ऑन टू लॉजिकल रीजनिंग. एलआर में आई ट्राइड टू अटेम्प्ट, आई डो नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली कितने मैंने अटेम्प्ट किए थे, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इन एलआर आई अटेम्प्टेड. देयर वाज सम दैट आई लेफ्ट फॉर लेटर मार्क फॉर रिव्यू करके. एंड उसके बाद इट वॉज टाइम फॉर केमिस्ट्री. अब केमिस्ट्री में मुझे पता था कि नेम रिएक्शंस हो गए, फिर बेसिक ट्रेंड्स जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं वो हो गए, बेसिक फॉर्मूले ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री के जो होते हैं वो तो आने ही आने हैं. सो आई स्टार्टेड स्किमिंग. उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री वॉज डिफिकल्ट इन माई पेपर. इट वॉज लाइक बेसिक फॉर्मूला बेस्ड तो था ही, बट जो ऑप्शंस दिए थे, जो द ऑप्शंस एज वेल एज द वैल्यूज़ दिए थे क्वेश्चन में, दे आर वेरी कैलकुलेटिव. तो उसको करने में बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए आई स्किप दैट ऑल्सो फॉर टाइम बिंग एंड आई वेंट अहेड विद फिजिक्स. फिजिक्स वॉज माई फेवरेट आउट ऑफ द फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 सब्जेक्ट्स. तो फिजिक्स में आई ट्राइड टू डू मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स दैट आई कुड डू एंड उसको करके मैं मैथ्स में गया. मैथ्स वॉज डिफिकल्ट इन माई पेपर and when I came outside I realized that it was one of the most difficult papers of BITSAT itself. After I answered maths, I pretty much went on to do the questions that I marked for review. One problem that happened is that I was very bad at time management because I was very anxious and nervous. इस चक्कर में by the time I was done with this, although I was very confident, I realized that कि मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटे के अराउंड ही टाइम बचा है. ठीक है. सो जनरली आई वॉज प्लानिंग कि मैं 1 घंटे में सब कुछ कर लूँगा, बट मुझे 1.5 घंटा लग गया. एंड नाउ आई हैव हाफ एन आवर लेस टू डू द मीडियम एंड डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस. सो दैट मेड मी वेरी नर्वस एंड आई डिड नॉट रियली नो व्हाट टू डू. आई वॉज पैनिकिंग अ लॉट because I had to solve almost more than 50% of the paper and I had hardly 1.5 hours. तो उस मोमेंट में आई जस्ट डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक. मुझे याद है एक सीनियर ने मुझे बताया था कि इफ़ यू फील थोड़ा एंशियस ड्यूरिंग द पेपर, take a 1 minute का break and have a sip of water. So I did exactly that, felt a little better and continued with my paper. As I mentioned 150 questions होते थे, 75 से ज़्यादा questions अभी बाकी थे that I have supposed to do. And I started doing them. मैंने किया. I slowly reached the 100 question mark. मैंने 100 questions solve किए. And उसके बाद I saw कि hardly 10-15 मिनट बचे हैं. मुझे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके रॉन्ग नहीं करने थे. आई वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एंड गेट देम राइट. सो 10-15 मिनट आखिर के बचे थे एंड उसके बाद सबमिट वाला बटन आ गया, लाइक फिनिश टेस्ट वाला बटन आ गया. एंड प्रीटी मच आई क्लिक्ड ऑन सबमिट या फिर जो भी है, जो एक बटन होता है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. आई क्लिक्ड ऑन दैट एंड द स्कोर दैट आई गॉट पॉप्ड ऑन माई स्क्रीन. साथ में मेरी आंखों से थोड़े आंसू भी आ गए बिकॉज मैंने जो स्कोर एक्सपेक्ट किया था वो तो बिल्कुल ही नहीं आया. एंड वो नहीं आया तो एक बात होगी, उससे तो बहुत ही गंदा आ गया. बिकॉज मैंने जो स्कोर एक्सपेक्ट किया था ना, एंड द स्कोर दैट आई हैड टोल्ड आई वुड गेट लाइक टू माई पेरेंट्स, वो स्कोर नहीं आया. सो उसी मूड में आई लेफ्ट द सेंटर एंड आई सॉ माई डैड वहाँ पे. एंड आई ऑनेस्टली डिड नॉट नो व्हाट टू टेल हिम बिकॉज
He was waiting for 3 hours, and everyone was expecting that I should do well in BitSat. But unfortunately, that did not happen. So when I met him, I told him कि ऐसा ऐसा हो गया है, and most likely I will not be able to get into bits. And he was very supportive about it. ठीक है, he told me that there are other options that you have got into, so it's all right. I mean, you did your best, you tried your best. अब कहीं ना कहीं पे I know that that feeling of not being able to achieve something after working hard for 2 years, that hit me a lot, and I was very hurt. And मैंने अपना मन बना लिया था कि ठीक है यार, like maybe it's done and now you should focus on something else. But एक काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ हुई that I decided that because I don't have any ब्रांच प्रेफरेंस या ऐसे कुछ है नहीं, आई वॉज लाइक आई विल जस्ट अप्लाई फॉर काउंसलिंग एंड चेक कि देखते हैं क्या होता है. सो माई पेरेंट्स वर ऑल्सो ओके विद दैट. दे वर लाइक जस्ट अप्लाई फॉर काउंसलिंग, लेट्स सी व्हाट हैपन्स. सो आई अप्लाइड फॉर काउंसलिंग, एंड फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड हुआ. A lot of rounds happened and I was still not getting any seat. So by this time I had left hope and I was like ठीक है, maybe नहीं होना मेरा engineering में in bits, and that's why I had lost all hopes. But end में there was this one concept called a spot round which bits did for the first time, and this was specially because everything had got delayed. JOSA counseling had got delayed. Jack Daly का जो counseling होता है had got delayed. Everything got delayed, and because of that last में bits did a spot round so that जो बच्चे हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी टू अप्लाई टू बिट्स, उनको एक बार वापस मिले. सो मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका था मैं काउंसलिंग में, सो आई डिड नॉट हैव टू अप्लाई अगेन. एंड फ्रॉम द कट ऑफ्स ऑफ द लेटेस्ट राउंड आई गॉट टू नो दैट आई कैन गेट अ ब्रांच इन बिट्स. ठीक है, एंड एग्जैक्टली पता नहीं था बिकॉज कट ऑफ्स ड्रॉप हो सकते हैं बहुत ज़्यादा एंड थोड़े भी ड्रॉप हो सकते हैं. सो इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे कि एग्जैक्टली क्या मिलेगा. सो आई वॉज ओके विद गेटिंग MSc बायो. लाइक मैंने ऑनेस्टली MSc बायो ऊपर फिल किया था ओवर फिजिक्स, मैथ्स एंड जो भी है. तो मेरे लिए वो प्रायोरिटी थी. आई वांटेड टू स्टडी बायोलॉजी एंड आई डिड नॉट वांट टू PCM एनीमोर बिकॉज माई फादर ऑल्सो हैज़ अ बैकग्राउंड इन द फार्मास्यूटिकल एंड बायो साइंस वाली इंडस्ट्री, सो ही रिकमेंडेड मी टू टेक दैट. सो मैंने MSc बायो भरा था एंड आई हैड फिल्ड इको, बायो, मैकेनिकल, 1-2 डुअल डिग्रीज और 1-2 सिंगल डिग्रीज. तो उसमें से मुझे स्पॉट राउंड में आई गॉट MSc बायो साइंस एट बिट्स गोवा, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज मैं गोवा से ही हूँ, तो आई वॉन्टेड टू गो टू बिट्स गोवा itself. So I was very happy about that. Later on when I got to know about the cutoffs, the cutoffs dropped in 2021. If you go and check the cutoffs on the website officially available, cutoffs dropped, and I was also I could have got mechanical in Hyderabad or physics in Goa, maybe even maths in Hyderabad. I'm not sure. I don't remember. उतना मुझे याद नहीं है अभी. But because of that, I chose bio. और मेरा ऑप्शन था, and ultimately I ended up joining BITS Goa. So my parents were very happy. Based on my experience, the thing that I would like to advise you is that please answer more mock tests. The concept of mock test was very underrated back then. इसलिए मैंने बस वो जो कोचिंग में 2-3 mock test वो आंसर किए थे, and I did not even know how to analyze them. But now we have literally made videos about how to analyze a mock test. In Fodu Club, we take sessions about how to improve your marks, how to answer a mock test, how to attempt it, like the strategy to attempt a mock test. तो इतनी awareness बढ़ गई आज की डेट में that I will really urge you कि you should answer a mock test, है ना. कोई भी mock test you can pick up. If you want a mock test, you can check out Fodu Club's mock test. One of the major reasons of starting Fodu Club was actually the fact that Kushal and I both did not get the sufficient guidance that we wanted during our preparation, and that motivated us to help our juniors and give back to the society, basically give back to the juniors in a way that we could guide them. So eventually जाके इसलिए we made the mock test, इसलिए we made the crash course, and that's why more and more things we started to do to help BITSAT aspirants. That you follow these things, and moreover second attempt है तुम्हारे पास. First attempt में even if you're able to not do your best, please make sure that you give your best in the second attempt. You have 20 days. 20 days में a lot of things can be changed. Baki, although I'm out of campus now, I might come to visit. So I hope to see you in the BITS campuses this year. All the best for your BITSAT exam, and just try to get to your best potential in the last 20 days.